Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat, and today we'll continue our chapter, that is Principles of Inheritance and Variation. Dear students, in the previous video we have talked about the monohybrid cross, and now we know how does characters they travel from one generation to another, how one character is being controlled by the different factors, isn't it? So now we have understood the concept of inheritance, and the credit for this understanding goes to the Gregor John Mendel. Okay, yes. So in this particular module today we'll be discussing the laws of inheritance, and we'll also discuss the dihybrid cross, following the concept of the contrasting characters, then the experiments of hybridization. Mendel concluded certain laws, right? He basically concluded the three laws which are now called as laws of inheritance. The very first law is law of dominance. Okay, the first law, which is called as law of dominance, which he derived from the monohybrid cross. जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया बच्चे, तो फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ही डिराइव्ड सर्टेन लॉज. द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव किया. एंड ही कंक्लूडेड दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स, right? And those discrete unit are factors. Like suppose if we talk about the character plant height, suppose we take a character plant height. Okay, we take a character which is named as plant height. So in case of plant height, the traits could be tall or dwarf. So this plant height is controlled by two factors, as you can see here, right? They are controlled by two factors. Can you see? Capital T and the small t. These two factors, they are controlling the plant height. Okay? And these factors, they always exist in pairs. So discrete factors are controlling the characters, and these factors, they always exist in pairs. As you can see here, capital T and small t, they are a pair. Okay, they are a pair, and this could be three possibilities could be there. Either they can be similar factors like capital T, another could be small t, or they could be dissimilar factors like capital T and small t. So whenever there is a dissimilar pair of factors, जैसा कि आप थर्ड कंडीशन में देख रहे हैं बेटा, कि जब भी dissimilar factors का pair होगा तो वहाँ पर एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के ऊपर डोमिनेंट होगा, यानी जो कैपिटल टी है इट विल बी डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल टी. सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट वाइल स्मॉल टी इज रिसेसिव. ओके, सो दिस वाज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, and whenever there is these factors, they will be present in dissimilar pair. In that case, only one character will be expressed in the F1 generation, that is the dominant character, and one character will never be expressed in a first generation, that will be called a recessive character, while in F2 generation both characters will be expressed. तो जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन अपने आप को सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है. सो फ्रॉम दिस लॉ वी कैन कंक्लूड दी लॉ ऑफ डोमिनेंस. वी कैन कंक्लूड दैट the character expressed in every generation is dominant, while the character which is not expressed in F1 generation but it is expressed in F2 generation is a recessive character. Now second law, which is called as law of segregation. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना. क्या होता है बेटा? सेपरेट होना. तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है बेटे, गैमीट फॉर्मेशन गैमीट फॉर्मेशन होगी तो जो दो फैक्टर्स है, वी नो फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स,
जो हमारे फैक्टर्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. दे कुड बी कैपिटल टी, सिमिलर पेयर्स हो सकते हैं, तो हम इसको हम होमोजाइगस कहते हैं जब सिमिलर फैक्टर्स होते हैं. और इट कुड बी स्मॉल टी, और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं. तो जब भी हमारे गेमीट्स जब भी गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ओके, लाइक यहाँ पर आपको कैपिटल टी प्रेजेंट है बेटा. यहाँ पर होगा आपका कैपिटल टी, ये सेपरेट हो जाएगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए गेमीट्स, 2 गेमीट्स बने हैं. ओके, एंड लेकिन दोनों गेमीट्स में सेम टाइप ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पर सिमिलर फैक्टर्स हैं. इन केस ऑफ स्मॉल टी अगेन वी हैव 2 गेमीट्स फॉर्म्ड. वन कंटेन्स द फर्स्ट टी, अनदर कंटेन्स द सेकेंड टी. In case of heterozygous condition, again there is a formation of 2 gametes, but both the gametes they contain different types of factors. One contains the capital T, another contains the small t. So whenever there is a formation of gametes, the 2 factors, out of the 2 factors, okay, the 2 factors which are present, they will separate from each other. वो दोनों एक दूसरे से separate हो जाएंगे and only one factor will be present in each gamete. हर एक gamete के अंदर सिर्फ एक ही factor present होगा. ठीक है बेटा, जब भी gametes की formation होगी तो दोनों factors अलग अलग हो जाएंगे and only one factor will be present in each gamete. Homozygous parent जो है that will produce a similar type of gametes. Heterozygous जो parent होगा बेटा that will produce 2 different types of gamete and which have equal, each having one allele with equal proportion. और हर एक के अंदर आपकी एक allele present होगी, एक factor present होगा. ठीक है बेटे, so this is your law of segregation. Now coming to the dihybrid cross. Now these 2 laws that I've discussed just now, first is law of dominance, second is law of सेग्रीगेशन. ये दोनों लॉ हैं बच्चे, ये डिराइव किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. ठीक है, बोथ दीज लॉज दे वर डिराइव फ्रॉम द the monohybrid cross. Now coming to the second cross, which is called as inheritance of 2 genes, or we call it as dihybrid cross. इसको हम कहते हैं dihybrid cross. क्या कहते हैं बेटा? Dihybrid cross. Okay, dihybrid cross का मतलब है a cross where we study inheritance of 2 pair of characters. एक ऐसा क्रॉस जहां हम 2 pair of characters का inheritance स्टडी करते हैं. ठीक है बेटा, वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 pair of characters. लिखिए, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज द फर्स्ट कैरेक्टर इज शेप ऑफ सीड. जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमने लिया है शेप ऑफ सीड. सो द शेप ऑफ सीड कुड बी राउंड, इट इज हियर राउंड, और इट इज रिंकल्ड. ठीक है बेटा, राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है. सेकेंड कैरेक्टर जो हम ले सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हो गया शेप ऑफ सीड. जो सेकेंड कैरेक्टर हम स्टडी कर सकते हैं दैट इज कलर ऑफ सीड. कलर ऑफ सीड, तो बताइए व्हाट इज द कलर हियर? येलो एंड द ग्रीन. ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड. Shape of seed could be round and wrinkled and color of seed could be yellow and green. ठीक है बेटा, अब इसमें shape of seed में जो है, जो round है वो dominant character है. So round is a dominant character and in case of color the yellow is dominant character. So round को हम designate कर सकते हैं capital R से. ठीक है, we will designate the round with capital R, और wrinkled को हम designate करेंगे small r से. Right? Likewise in the same manner, yellow will be indicated as capital Y, and wrinkled will be indicated as, green will be indicated as small y. ठीक है, clear बेटे? Is this clear everyone? Is this clear? Tell me if you have understood. अगर आपको समझ आ गया है बेटा तो बताइए if you understood.
हैव यू अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब हमारे पास जो कैरेक्टर है बेटा, जो कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है वो फर्स्ट कैरेक्टर हो गया. हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना है हमें. सो हमारा जो कैरेक्टर है दैट इज राउंड एंड येलो. जो फर्स्ट पेरेंट होगा वो होगा राउंड सीड्स and with yellow color, and it has to be crossed with wrinkled and green. इसको हमने क्रॉस करना है wrinkled और green के साथ. So round के लिए इसको हम जीनोटाइप में लिखेंगे. राउंड के लिए we should write it as capital R, and for yellow we will be writing as capital Y. So this has to be crossed with wrinkled को हम लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे wrinkled को? स्मॉल r, and green we will use it small y. So these will be our parents in case of dihybrid cross. Capital Y, capital R, capital Y, and small r, small y. Clear bete? Okay, so now let's make our dihybrid cross. So let's see, अब हमारे पेरेंट्स क्या हो गए बेटा? राउंड एंड येलो. ठीक है, हमारे पेरेंट्स होंगे राउंड एंड येलो. सो कैपिटल R, कैपिटल Y, एंड वी हैव पेरेंट्स स्मॉल r, स्मॉल y. तो ये हमारे हो गए राउंड एंड येलो और ये हमारे हो गए रिंकल्ड एंड येलो, एंड बोथ आर ट्रू फॉर द कैरेक्टर. ठीक है ना? जो आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो फर्स्ट चीज़ थी वो थी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स. बेटा जी क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स. सो दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे. क्लियर है? अब हम सेकेंडली बनाते हैं गैमीट्स. तो जब भी गैमीट्स बनते हैं 50% आधा हो जाता है. सो यहाँ से देखिए इन दोनों आर में से कोई एक आर यहाँ पहुँचेगा, एक वाई पहुँचेगा. सो जो गैमीट्स बनेंगे वो होंगे आपका कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, जबकि यहाँ पर होंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई. तो अब हमारे गैमीट्स बन गए हैं. नाउ वी विल हैव अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड दैट विल बी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. सो हियर ऑल द सीड्स दे विल बी राउंड and they will be of yellow color. Seeds will be round and yellow color, right? अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी हमें F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल राइट कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. ओके बच्चा जी. नेक्स्ट अगेन वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे बेटा उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ है. देर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द गैमीट. ठीक है, क्या है? 4 पॉसिबिलिटीज़ है. सो यू कैन सी हियर वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़. जो फर्स्ट गैमीट बनता है वो है आपका कैपिटल R, कैपिटल Y. सेकेंड इज कैपिटल R, स्मॉल y. थर्ड इज स्मॉल r, कैपिटल Y. फोर्थ इज स्मॉल r, स्मॉल y. और इसी तरीके से आपका सेकेंड पेरेंट के भी गैमीट्स बनेंगे. सो नाउ आफ्टर F1 जनरेशन जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक पेरेंट से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनते हैं, 4 अलग तरीके के गैमीट्स. ठीक है. नाउ लेट्स कंबाइन ऑल द 4 गैमीट्स. अब हम 4 गैमीट्स को दूसरे 4 गैमीट्स के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं. तो 1 here we'll write 4 gametes here we'll write the gametes of second parent and we'll cross multiply. देखिए यहाँ से ये वाला गैमीट और ये वाला इसको कंबाइन करिए. सो इट बिकम्स कैपिटल R, कैपिटल Y. सो राउंड एंड येलो लाइकवाइज आप इस तरीके से करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. सो यू विल मेक दिस कॉलम. अब ये जो कॉलम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, नाउ लेट्स काउंट हाउ मेनी आर राउंड एंड येलो. सो आप कलर वेरिएशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 राउंड एंड येलो आर 9. ओके. जो पेरेंट्स हैं आपके यहाँ पर 4 तरीके के F2 जनरेशन 4 तरीके की बनेगी. फर्स्ट इज राउंड एंड येलो, देन राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. एंड वी कैन काउंट द respective number of
ईच कैटेगरी, हम हर एक कैटेगरी के नंबर काउंट कर सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स राउंड येलो हैं, कितने इंडिविजुअल्स राउंड ग्रीन हैं, कितने इंडिविजुअल्स रिंकल्ड येलो हैं और कितने इंडिविजुअल्स रिंकल्ड ग्रीन हैं. ठीक है बेटा जी. नाउ व्हेन वी काउंट इट, सो हमें पता लगता है जब हम F2 जनरेशन को काउंट करते हैं, ठीक है, तो राउंड इन येलो कितने होते हैं? 9. राउंड इन ग्रीन दे आर 3. wrinkled yellow they are 3 and green wrinkled green they are 1. हमने आप नंबरिंग चेक कर सकते हैं बेटा. 1 2 वी हैव काउंटेड हियर. जो आपको रेड कलर से काउंट नजर आ रहा है दैट इज योर 9. ठीक है, वो आपके राउंड इन येलो है. क्लियर? देन वी हैव काउंटेड राउंड इन ग्रीन. ठीक है, राउंड एंड ग्रीन विथ पर्पल कलर. देन wrinkled yellow we have counted with green color and wrinkled green we have counted with brown, this maroon color. So we see कि जो रेशो आती है डायहाइब्रिड की, जो फिनोटिपिक रेशो आती है बच्चे, वो आती है 9:3:3:1. ठीक है, क्या रेशो आती है? 9:3:3:1. अब इस रेशो में अगर हम ध्यान से देखें तो राउंड इन येलो है जो है बेटा, जो राउंड येलो है और जो रिंकल्ड ग्रीन है, ये इंडिविजुअल्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे इनके पेरेंट्स हैं. मींस ये दोनों इंडिविजुअल वही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो पेरेंट्स के पास है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि देयर आर आउट ऑफ 16 10 इंडिविजुअल्स शो द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. 16 इंडिविजुअल्स में से 10 इंडिविजुअल जो हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं और 6 इंडिविजुअल्स जो हैं बेटा वो न्यू कॉम्बिनेशन शो करते हैं. So 6 out of 16 are new combinations and 10 out of 16 are parental combinations. Is it clear बेटे? आपको phenotypic रेशो समझ आई है? Yes. अगर हम जीनोटाइपिक रेशो काउंट करते हैं बेटा, although we are not supposed to, but if we want to count, तो हम देखेंगे कि कैपिटल R कैपिटल Y is 1, कैपिटल R एंड देन स्मॉल कैपिटल Y एंड स्मॉल y is 2. तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में हम नंबर काउंट कर सकते हैं एंड इट्स अ लॉन्ग रेशो. सो जीनोटिपिक रेशो जो है वो काफ़ी लंबी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट. सो हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या है दैट वी विल सिंपली रिमेंबर द फिनोटिपिक रेशो. वी वोंट टॉक अबाउट मच अबाउट द जीनोटिपिक रेशो. ऑल्दो इफ यू वांट टू यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली. आप कैलकुलेट कर सकते हो इस स्लाइड से कि जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. Okay, now from this this dihybrid cross, इस dihybrid cross से the third law was derived which is called as law of independent assortment. एक थर्ड लॉ को derive किया गया बेटा जिसको कहा जाता है law of assortment. law of independent assortment का मतलब है जब अब see whenever there is a cross where there is a inheritance of more than one character, जब हम कोई भी क्रॉस बनाते हैं जहाँ पर two pair of factors present है. See, this is factor number 1, this is factor number 2. Similarly here this is factor number 1, this is factor number 2. तो इस कैरेक्टर इस उसमें इस इनहेरिटेंस में जहाँ हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, सो ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स, सो वी हैव टोटल 4 फैक्टर्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 4 फैक्टर्स प्रेजेंट है, यानी 2 पेयर ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट. सो दिस फैक्टर इज नॉट रिलेटेड विद द फर्स्ट फैक्टर इन एनी वे और दिस फैक्टर इज रिलेटेड. तो दोनों फैक्टर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है बेटे. ठीक है, दोनों फैक्टर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे के इनहेरिटेंस को कंट्रोल नहीं करते हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज मोर देन वन पेयर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अ क्रॉस, अगर किसी भी क्रॉस में एक पेयर से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व है, सो फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दोनों फैक्टर्स यानी फैक्टर ए और फैक्टर बी, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. दे विल नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर एंड दे विल सेग्रीगेट, दे विल सेपरेट
इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। यानी इफ यू लुक एट इट, ये दो फैक्टर्स अलग मूव करेंगे, ये दो फैक्टर्स अलग मूव करेंगे, यानी इनका सेग्रीगेशन अलग होगा, इनका सेग्रीगेशन अलग होगा, किसी भी वे में ए बी से रिलेटेड नहीं होगा। सो यू कैन सी हियर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, हियर यू कैन सी स्मॉल ए स्मॉल बी, or could be second possibility could be you can have capital A small b और small a capital B। तो कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, A और B का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। सो दिस लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और बेटा जो इतने भी मेंडल के लॉज हैं, दीज 3 आर द लॉज ऑफ मेंडल, टिल डेट दे स्टूड करेक्ट। आज तक they have not I know Mendel gave these laws in 100 years ago, but till date nobody has been able to challenge them. They have been re-verified and cross-verified by a number of scientists, so they have stood the test of time. Okay, ठीक है बेटा। So this is again I'm saying they assort independently, दोनों possibilities हैं, दोनों में से कोई भी possibility execute हो सकती है। So with this we finish the topic, that is dihabit cross and the laws of Mendel. So you will be making notes of the topic and you will be going through the laws of inheritance, and if there is any doubt, any query, you can share it with me beta. Okay, so that's all for today. Bye everyone.